Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 8, comparing quantities. And today's part is part 10. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to 9, I will suggest to watch those parts. I have shared the link at the end of the video. So what will happen, the conception will be much more clearer, the concept you will know nicely and it will be easy for you to solve these sums. And today we are going to continue with exercise 8.5. In our previous part we did 8.5 question number 1 and today we will start solving question number 2. So what it is telling, a man bought a car for 5,60,000 and spent rupees 15,000 on its accessories. Okay. Later he sold the car for rupees 7 lakh. Find his profit percent. That means if I want to start the sum, the cost price of the car, so CP is equal to how much? Rupees 5,60,000. Now spend rupees 15,000 on its accessories. Accessories means we can tell that it is overhead charges. So overhead charges is how much? Rupees 15,000. So now if we add these two, then it will become what? Total cost price. So if I add 0, 0, 0 and 5 and 6 plus 1, 7 and this one 5,75,000. And he sold the car for rupees what? 7 lakh. So selling price is how much? Selling price is rupees 7 lakh. Now you can see the total cost price is this much, selling price is this much. From here only you can understand that selling price is more. So when selling price is more, what we are getting? We are getting profit. Clear no? So therefore profit will be what? Selling price minus cost price. So selling price is what? Rupees 7 lakh. Okay, minus rupees cost price is what? 5,75,000. Clear? And if you subtract this one, it is very easy. How to subtract it? 7 lakh, suppose if you cannot do directly, and 5,75,000. So if you subtract, 3 zeros will be here. Now to borrow this one, it becomes 6, 10. Again you borrow here. So 10 minus 5, 5, 9 minus 7, 2, and 6 minus 5, 1. So what you get? 1,25,000 is the profit. Clear no? So you got profit. Now to find out profit percentage. So let us do it here. From here we will go here. So profit, therefore profit percentage. Okay, profit percentage. So what is the formula? Formula is profit divided by, now here we will not take cost price, we will take total cost price. Okay, total CP. Okay, into 100%, because already I have given you the formula of profit percent, profit divided by cost price. Now this cost price I wrote here total cost price. Why total cost price? Because cost price plus you are adding the overhead charges. Clear no? So here what we will do? We will write the profit rupees 1,25,000 divided by rupees, this is coming how much? 5,75,000. Clear? Into 100%. Clear? Now you can see, if you see nicely, here 3 zeros cancel. Here rupees cancels. So what you get? 125 upside, downside is what? 575 into 100. Clear?
Now what we will do, we will cut with 5. 5 2s are 10, 2 left, so 25, 5 5s are 25. Again here 5 1s are 5, again 5 1s are 5, 2 left, so 25, so 5 5s are 25. Clear no? Now after that again we will cut 5 5s are 25, and here 5 2s are 10, okay, 5 2s are 10, 1 carry, so 15, 5 3s are 15. Clear no? And nothing we can do. Now what we will write here? We will write 5 by 23. Now 5 by 23 into 100. So 5 into 100 is how much? 500. So instead of writing 5, I can directly write 500. What I am doing? 5 or 100 I am multiplying. And this is the percentage symbol. Now if I divide, I will get the answer. Clear no? अभी थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं. एक आदमी ने गाड़ी खरीदा है 5,60,000 रुपीज़ में, और वो हो गया कॉस्ट प्राइस, एंड स्पेंड 15,000 रुपया एक्सेसरीज. गाड़ी का बहुत एक्सेसरीज होता है, तो वो सब एक्सेसरीज मतलब ओवरहेड चार्जेस, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे. ऑलरेडी मैंने ओवरहेड चार्जेस बोल दिया है, तो वो कॉस्ट प्राइस से ऐड होकर कॉस्ट प्राइस और ज़्यादा हो जाता है, तो वो होगा टोटल कॉस्ट प्राइस. अभी वही गाड़ी को कितना रुपया में बेचा है? 7 लाख रुपया में, तो 7 लाख ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो प्रॉफिट होगा. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 7 लाख माइनस 5,75,000 रुपया, तो आ गया कितना प्रॉफिट? 1,25,000 रुपया. तो जैसे ही प्रॉफिट आ गया, हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज द फॉर्मूला, बट हेयर वी विल टेक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस. क्यों? द कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जा रहा है. क्यों? ओवरहेड चार्जेस हम लोगों ने उसके साथ ऐड किया है. ठीक है, तो आ गया ये कैंसिलेशन करके. अभी इसको हम लोग डिवाइड करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा. चलो डिवाइड करते हैं. 500, ओके, सो 23 से डिवाइड करेंगे, सो 23 2 ज़ा 46. ठीक है, तो आ गया 4 और इधर में आ गया 0. अभी इसको करेंगे 2 ज़ा करने से आएगा कि वो ज़्यादा हो जाएगा, 46 हो जाएगा. सो 23 1 ज़ा 23. ठीक है, तो 7 आ गया और इसमें कितना आ गया? 1 आ गया, सो 17. अभी कुछ भी नहीं है, हम पॉइंट करेंगे. ठीक है, अभी इधर में 0 देंगे. ठीक है, तो क्या हो गया? अभी अच्छे से देखो, 170 आ गया, तो 170 कितना में जाएगा? सो 23, सपोज 7 से करते हैं. 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 15 16, सो 161. देखो क्लोजर हो गया 7. ठीक है, तो कितना आ गया? 161. ठीक है, अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ गया. अभी फिर 0 लिखेंगे तो 0 90 हो गया, तो ये कितना में जाएगा? सो 23, अगर हम लोग करते हैं 23 इंटू सपोज 3 करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69. ठीक है, सो 3 से जाएगा, 69 आ गया. तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा? 1 आएगा. ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ, इधर नीचे में दिखाई देगा या नहीं मालूम. तो 1 आ गया, और क्यों आ गया? क्योंकि 9 से हमने 1 बोरो किया है. ठीक है, और 8 माइनस, सो 6 इज हाउ मच? 2, सो 21 आ गया. अभी फिर से हम लोग एक तो 0 दे सकते हैं इधर में, 0. अगर तुम नहीं चाहते तो यही लिख दो आंसर, 21.73. ठीक है, यही आंसर लिख देना, 21.73%. मगर अगर बुक का आंसर तुमको निकालना है तो और एक बार करना पड़ेगा. सो 210 आ गया. तो 7 ज़ा इतना है, सो 8 ज़ा हाउ मच? सो लेट अस फाइंड आउट 23 इंटू 8. 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 17 18, सो 184. सो अभी 23, 9 ज़ा एक बार ट्राई करते हैं. 9 3 ज़ा 27, 2 9 2 ज़ा 18, 9 20. हाँ, 9 ज़ा देखो क्लोजर आ गया. ठीक है, 207. सो 9 ज़ा जा रहा है 207. तो हम लोग लिख सकते हैं 21.739. अभी हम लोग इसको 21.74 कर देंगे. ठीक है, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये आ गया हम लोग का आंसर. कैसे राउंड ऑफ किया है मैंने ऑलरेडी सिखाया है. ठीक है, तो पहले का चैप्टर में मैंने सिखाया है. अगर द थर्ड डिजिट अगर
5 से ऊपर होगा तो सेकेंड डिजिट में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ऐसा करके 21.74 आ गया हम लोग का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ए फ्लोरिस्ट बॉट 240 रोजेस एट ₹10 पर डजन, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट ₹1.50, मतलब ₹1.50 ईच। ओके, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आइदर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालो। तो ये सम कैसे करेंगे, उसके पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, if you like this video and if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe your channel. When you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will continue with question number 3. फ्लोरिस्ट मतलब, पहले फ्लोरिस्ट का मतलब क्या है, जो फूल बेचता है। तो वो रोजेस बेच रहा है, ठीक है, 10 रुपया। ओके, कितना तो पीस ना, 1 डजन। ओके, 1 डजन मतलब पर डजन मीन्स कितना पीस बेच रहा है, 12। डजन मीन्स 12, ठीक है। तो टोटल कितना रोजेस वो बेच रहा है, 240 रोजेस। ओके, तो उसका दाम पहले निकालेंगे। वी विल फाइंड आउट दैट वन फर्स्ट। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो इधर में डजन बोला है, सो 12 डजन मतलब 12। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 रोजेस इज हाउ मच, ₹10। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रोज, तो 1 रोज कितना होगा, उससे भी कम, 10 रुपये से भी कम, मतलब डिवाइड बाई 12। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ, हमको कितना रोजेस और द फ्लोरिस्ट कितना रोजेस बेच रहा है, सो 240 रोजेस। तो 240 रोजेस का दाम कितना होगा, ज़्यादा होगा, सो ₹10 बाई 12 इंटू 240, ठीक है। अभी देखो हम इसको काटेंगे, 12 टेबल में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड देन 0। अभी 10 इंटू 20 कितना हो गया, ₹200, ठीक है। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस आ गया है। अभी सेलिंग प्राइस क्या बोला है, सोल्ड देम एट ₹1.50 ईच, मतलब एक एक रोज फ्लावर को ₹1.50 से मतलब बिक्री किया है, मतलब सेल किया है, ठीक है, बेचा है, ठीक है, वही अच्छा होगा, बेचा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रोज, तो 1 रोज का कितना है, ₹1.50, ठीक है। नाउ देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 240 रोजेस, तो 240 रोजेस का दाम कितना होगा, ज़्यादा होगा, एक का दाम ₹1.50, 240 का दाम ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई, सो 1.50 इंटू 240, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तुम लोग मल्टीप्लाई तो जानते हो, तो वेरी इजी है, 240 और ₹1.50, ठीक है। तो अभी 0 से करने से 0 0 0 हो गया, फिर क्रॉस देंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 12, फिर डबल क्रॉस, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, देखो 0 0 0 6 3। अभी पॉइंट के बाद 2 ठो डिजिट है, तो इधर से पॉइंट के बाद 1 ठो 2 ठो इधर में आएगा पॉइंट, तो कितना आ गया, 360.00। सो 0.00 नहीं लिखने का, 360 लिखेंगे, आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ वर्क, क्योंकि हम लोग इधर में सम्स करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। अभी जब सेलिंग प्राइस आ गया है, अभी तुमको मालूम है कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, सेलिंग प्राइस भी मालूम है। अभी बोलो प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ऑब्वियसली प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹360 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹200। इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा,
160, 360 माइनस 200 इज 160। अब जैसे ही हमको प्रॉफिट आ गया है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सो प्रॉफिट, लास्ट स्टेप, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ओके, इनटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है, ₹160, और इधर में ₹160 आ गया, और इधर में कितना है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ₹200। ये देखो 200 इंटू 100%। क्लियर। तो रुपीस कैंसिल हो गया, 100 का 2 ठो जीरो, इधर में भी 2 ठो जीरो कैंसिल हो गया। अभी 2 बचा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, तो आ गया कितना 80, और लिखेंगे %। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। मैंने धीरे धीरे तुम लोग को सिखा रहा हूँ ये सब सम्स, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसको अगर जल्दी जल्दी सिखा दूंगा तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सम्स तो सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, मगर क्या हो रहा है ना हो रहा है वो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब तुम लोग क्लास 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, दूसरा सम तो तुम लोग कर लोगे, मगर वर्ड प्रॉब्लम सम में तुम लोग को प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तो उस टाइम पहले छोटा टाइम में, जैसा क्लास 7 क्लास 6 में, तुम लोग सिर्फ सॉल्यूशन अगर देखोगे तो हो गया। तुम लोग को सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सम को समझना। ठीक है, अगर सम समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कैसे करके करने हैं। ठीक है, इधर में हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली नहीं दिया है। इधर में कॉस्ट प्राइस कैसे दिया है, वो 240 रोजेस बेच रहा है, मगर कैसे बेच रहा है, 10 रुपया पर डजन में, पर डजन मतलब 12 ठो पीस 10 रुपया में बेच रहा है। तो वहां से हमको 240 रोजेस का दाम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ठो रोज, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रोज विल बी कम, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 240 रोजेस विल बी ज्यादा, तो मतलब मल्टीप्लाई। सो वहां से हमको कॉस्ट प्राइस निकल गया। अभी सेलिंग प्राइस कैसे दिया है, सेलिंग प्राइस बोला है एक एक रोज को ₹1.50 से बिक्री करता है, बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रोज इज ₹1.50। तो वहां से हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ 240 रोजेस, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा मतलब वी विल मल्टीप्लाई एंड वी गॉट 360। जैसे ही हम लोग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया है, तो यहां से हम लोग को पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है। क्यों, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ जाएगा प्रॉफिट। तो जैसे ही प्रॉफिट आ गया, हम लोग को बोला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, नहीं तो लॉस परसेंटेज। तो यहां पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद काटाकाटी करेंगे और आंसर आ गया। तो मेरा ख्याल से all of you have understood question number 3 nicely. Now it is your duty to practice these sums again and again, so that in the exam you can do it quickly as well as correctly. अगर कुछ सवाल है तुम लोग का माइंड में, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके तुम लोग लिख सकते हो, मैं सबको उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।